everyone, this is Tanu Agrawal welcoming you all at your very own YouTube channel Let's Learn. This is part 2 of our revision series of chapter 2 Forms of Business Organization. We were discussing different 1 mark and short answer questions. So today we are going to discuss the other 1 mark and short answer questions in this video. Write any one effect of non-registration of partnership. As we have already discussed in our previous video that registration of partnership firm is not compulsory as per Indian Partnership Act 1932. As per Indian Partnership Act 1932, registration of partnership firm is not compulsory. So, अब जब हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं पार्टनरशिप फर्म का तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो किसी भी नॉन रजिस्टर्ड फर्म को बेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसके साथ में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. Although it is not compulsory to register a partnership firm, but the consequences of non-registration are there. First, the partners cannot file a case against पार्टनरशिप फर्म. अब जो हमारी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उसके अगेंस्ट जो पार्टनर्स हैं किसी भी डिस्प्यूट के केस में वो केस फाइल नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा. मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो भी पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हैं. एंड द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी. अब अगर कोई थर्ड पार्टी से डिस्प्यूट हो जाता है, किसी भी थर्ड पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती है. एंड ऑल्सो एनी पार्टनर अमंग ईच अदर कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट. मीन्स जैसे पार्टनर 1 है, पार्टनर 2 एंड पार्टनर 3. सो पार्टनर 1 कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट पार्टनर 2 और पार्टनर 3. And also the partner 2 cannot file a case against partner 1 and partner 3. And partner 3 cannot file the case against partner 1 and partner 2. So the partner cannot file a case against any other partner. एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता है. These are the various consequences of non-registration of any partnership firm. So in order to avoid these consequences, every firm wants to get registered itself under the Partnership Act 1932. We have to mention any one consequence of non-registration of partnership firm. So no suit by partner against any other partners or firm. कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पर या किसी दूसरे पार्टनर पर सूट फाइल नहीं कर सकता. सूट मीन्स केस. What is a joint stock company? Joint stock company क्या होता है? The joint stock company is a business controlled by its investor. Joint stock company business को investors control करते हैं, जो उसके members होते हैं, जो shareholders होते हैं. With each investor enjoying a share based on the amount of stock acquired. हर investor के पास एक particular amount of share होता है उस company का. The owner of joint stock company means the shareholder of this company demand to share in its profit. उनकी क्या डिमांड होती है कि वो कंपनी के प्रॉफिट में शेयर लेंगे. By whom are the board of directors elected in joint stock company? Joint stock company में जो board of directors elect किए जाते हैं वो कौन करता है? The shareholders. The shareholders elect the board of directors in joint stock company. अब जो shareholder होते हैं वो कंपनी के ओनर कहे जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है. So the shareholders have the right to elect the board of directors in case of a joint stock company. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और होता है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 2 टाइप्स की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सो इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, एंड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 3 डायरेक्टर्स, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. विच कंपनी हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर? किस कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है शेयर्स को ट्रांसफर करने में. So the public company has no restriction on the transfer of shares, while the transfer of shares are prohibited in case of a private limited company. Who is a secret partner? Secret partner कौन होता है? Secret partner is a partner whose membership in a partnership firm is maintained secret from the public. मतलब सीक्रेट पार्टनर की जो मेंबरशिप होती है, जो उसका कंपनी में प्रेजेंस होता है, वो जो जनरल पब्लिक होती है उससे सीक्रेट रखा जाता है. यानी कि जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है कि ये पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म में मेंबर है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड लायबिलिटी, वी कैन डिस्टिंग्विश मैनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स.
एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर होता है उसका, और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ये कौन होते हैं? जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट और लॉस में अपना शेयर लेते हैं, और इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सीक्रेट पार्टनर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दे कंट्रीब्यूट द कैपिटल, टेक पार्ट इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, they have unlimited liability, but their participation in the management is kept secret. Nominal partner is the one, ये वो पार्टनर होते हैं जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. They do not contribute any capital. They generally do not share any profit or loss, but they have unlimited liability because they give their name, their title to the company. जो कंपनी होती है वो नॉमिनल पार्टनर के नेम को यूज करती है, उनके नेम को यूज करके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन इन करती है. पार्टनर बाय स्टॉपेल, नॉमिनल पार्टनर के ही दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पार्टनर बाय स्टॉपेल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय स्टॉपेल वो होता है जो अपने कंडक्ट से ऐसा दिखाता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे कि जो जनरल पब्लिक होती है उसको वो पार्टनर जैसा लगता है कि वो उस फर्म में पार्टनर होगा. ये कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ना ही प्रॉफिट और लॉस में इसका शेयर होता है, और ना ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. बस ये अपने कंडक्ट से ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि उस फर्म में पार्टनर है, एंड दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये कौन होते हैं? वो लोग जो एक्चुअल में किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर नहीं है, लेकिन जब जनरल पब्लिक या कोई और उन्हें उस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा मानता है तब ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, मतलब ये खुद को उस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बताते रहते हैं जबकि ये एक्चुअल में नहीं होते हैं. दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, क्योंकि हकीकत में तो पार्टनर होते नहीं है, ना ही इन्हें कोई प्रॉफिट या लॉस मिलता है, ना ही ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अपने आप को उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बताने से ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहे हैं, उसे मना भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी लायबिलिटी कैसी हो जाती है? अनलिमिटेड. मतलब अगर ये उस पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये लायबल होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए. व्हाट इज पार्टनर बाय स्टॉपेल? तो पार्टनर बाय स्टॉपेल कौन होते हैं? जो अपने कंडक्ट से ऐसा दिखाते हैं कि ये किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, उनकी एक्टिविटीज से हमें पता चलता है कि ये उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर होंगे. A legally obligatory partnership that might result where in fact no formal partnership agreement is in force. कोई भी formal partnership agreement नहीं हुआ है, लेकिन a person who by rule or by births serve or permit himself or herself to be represented as a partner. लेकिन ये by rule या फिर by births ऐसा represent करते हैं कि ये उस partnership में partner है, कोई formal agreement नहीं है, लेकिन by rules या by births ये bound है उस partnership firm के लिए. They represent to be as a partner, and any credit or loan acquired by the enterprise. अब अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म कोई भी क्रेडिट या कोई लोन ले लेती है तो उसके लिए ये लायबल होंगे क्योंकि दे रिप्रेजेंट टू बी अ पार्टनर. दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिजम्पशन ऑफ पार्टनरशिप. ये पार्टनरशिप की एक प्रिजम्पशन है, एक अजम्पशन है कि ये लोग पार्टनर्स हैं, और इनके बिहाफ पर, इनके नेम के बिहाफ पर पार्टनरशिप फर्म कोई भी एग्रीमेंट में अगर आती है तो ये लोग भी इक्वली लायबल होंगे. Who is minor partner? अब एक टाइप ऑफ पार्टनर और होता है माइनर पार्टनर. माइनर पार्टनर इज वन हु हैव नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स. जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है उसको माइनर पार्टनर कहते हैं. टीचर्स ऑफ योर स्कूल फॉर्म्ड अ सोसाइटी टू बाय लैंड एंड कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स फॉर इट्स मेंबर्स. आइडेंटिफाई दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस. अब जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने एक जमीन ली है और उस पर फ्लैट्स बना रहे हैं अपने ही मेंबर्स के लिए. सो दिस इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. And which type of cooperative society? This is housing cooperative society. Application for approval of name of a company is to be made to. हमें कंपनी के लिए एक नेम चाहिए, उसके लिए जो अप्रूवल होता है वो कौन देता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड. सो दिस इज कॉल्ड शेयर. अ पर्सन हु lends his name and goodwill to benefit of a partnership firm. ऐसा पर्सन जो अपना नेम देता है और अपनी गुडविल देता है बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप फर्म की, उसको क्या कहेंगे? नॉमिनल पार्टनर. अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद द लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज, सोल प्रोप्राइटरशिप. सोसाइटी सेट अप टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी.
Society set up to provide easy credit. So this is Credit Cooperative Society. Name the document called Doctrine of Indoor Management. So this document is Article of Association. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, उसकी पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं कि किस तरीके से कंपनी काम करने वाली है. और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इन दिस डॉक्यूमेंट इट इज ऑल्सो नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी और द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. इसमें कंपनी के स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीजें डिफाइन होती हैं. When does the company come into existence? कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आती है? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. व्हाट इज टेबल एफ? टेबल एफ क्या होती है? सेक्शन 5 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो ये कहता है कि कंपनी के जो भी आर्टिकल्स हैं वो एक रिस्पेक्टिव फॉर्म में स्पेसिफाइड होने चाहिए. और वो रिस्पेक्टिव फॉर्म कौन सी टेबल में दे रखा है? टेबल एफ में. नेम द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. बेसिकली जब कंपनी फॉर्म होती है तो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज होती है प्रमोशन की, जिसमें एक बेसिक आइडिया और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंपनी को फॉर्म करने का. सेकंड स्टेज होती है इनकॉर्पोरेशन की. इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में क्या होता है? कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है. थर्ड स्टेज होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की. इस स्टेज में क्या होता है? कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है जनरल पब्लिक को टू सब्सक्राइब इट्स कैपिटल. एंड फोर्थ स्टेज इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. अब कंपनी स्टार्ट हो जाती है फोर्थ स्टेज में. व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? जो कंपनी होती है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसमें से एक फीचर है परपेचुअल सक्सेशन का. इसका मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स में कम एंड गो, मेंबर्स आते जाते रहेंगे बट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी विल कंटिन्यू. सो द कंपनी कंटिन्यूज टू ऑपरेट. कंपनी चलती रहती है. कंपनी और मेंबर्स दो सेपरेट लीगल एंटिटी माने जाते हैं. So the perpetual succession says that the members may come and go, but the company continues to operate. How can one identify from the name of a company whether it is private or public company? अब हमें नाम से कैसे पता चलेगा कि वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? In India, from the name of the company, you can identify whether it is public or private company. In case of private limited company, private limited is used after the name of the company. For example, ABC Private Limited. So this is a private limited company. And in case of a public limited company, after the name of the company only limited is used. XYZ Limited. So अगर केवल limited लगा हुआ है इसका मतलब वो public limited company है, और अगर private limited लिखा है तो वो private limited company है. State the minimum and maximum members required to formation of a cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस इन आवर फर्स्ट पार्ट आल्सो दैट मिनिमम ऑफ 10 एडल्ट मेंबर्स. 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, एंड मैक्सिमम इज अनलिमिटेड. हियर इज अ चार्ट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कितने कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट. सो इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, मिनिमम इज 1 and maximum is also 1 because the single owner operate the business. In case of joint Hindu family business, minimum 2 male adult members होने चाहिए और maximum no limit. In case of partnership, minimum 2 members are required to form a partnership firm and maximum 50. In case of cooperative society, just now we have discussed that minimum 10 adult members and maximum no limit. In case of a company, there are basically 3 types of company: private company, public company and one person company. So as the name signifies, one person company में minimum and maximum limit is 1 person. Private limited company में minimum 2 and maximum 200. And in case of a public company, minimum 7 members and maximum no limit. State the minimum and maximum members in partnership. Partnership में minimum और maximum कितने members चाहिए होते हैं? 2 and 50. And in case of a banking business, maximum limit is 10 members. State the minimum number of members required in one person company. So the minimum limit is 1 and also the maximum limit is 1. Now define the following terms. Quorum. Quorum क्या होती है? A quorum is minimum number of directors necessary to pass a resolution in a meeting. जब कंपनी की मीटिंग होती है उसमें किसी भी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. दिस इज कॉल्ड कोरम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ टीम ऑफ पीपल हु कंट्रोल एंड मैनेज द कंपनी एंड साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है
चार्टर ऑफ द कंपनी होता है जिसमें कंपनी के ऑपरेशंस एंड स्कोप बताते हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक पीपल की टीम होती है जो कि कंट्रोल करती है, मैनेज करती है कंपनी के ऑपरेशंस को और साइन करती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं? क्वालिफिकेशन शेयर्स आर दो शेयर्स विच डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मस्ट होल्ड। ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास में मिनिमम इतने शेयर तो होने ही चाहिए, तभी वो लोग डायरेक्टर्स के लिए क्वालिफाई होते हैं टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी। अगर किसी भी मेंबर को कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो उसके पास मिनिमम इतने शेयर्स होने चाहिए।